Okay, so today we have this chapter. We have the first class of second year English here. And, and we have the first class of second year English here, and we have to start the book like in first year. We started the book Selection from English Verses. The same book is here for second year as well, which is also called poem book or poetry book. But the real name of the book is Selection from English Verses. Okay. There are two parts in this book. Part 1 was studied in class first year, while part 2 is studied in second year. In part 2 there are many poems which we will discuss, and all the poems we have to read. So today we are going to start the first poem of your second year English, that is The Seven Ages of Man. In first year the book started with the poetry of William Shakespeare. And in the second year as well, the book starts with the poetry of William Shakespeare. That's why, because your book is actually an anthology. And what is anthology? I described in first year that anthology is a book in which the poems are written in the ascending order of date. Like at the start, the Elizabethan poets will be there, then Augustan poets, then Romantic poets, then Victorian poets, and at the last there should be a modern poet. Okay, so that's why it is an anthology. So at the start we have to discuss the Elizabethan poet, and the greatest poet of Elizabethan era was William Shakespeare. Okay, so William Shakespeare. So first of all about the poet. Next day we will discuss about anything else. In first year I told you about him as well. William Shakespeare was the greatest dramatist and poet of English language. Without any shadow of doubt, he is the greatest dramatist and poet of English language. And this appraisal was given by another famous poet whose name was Dryden. So Dryden was a famous critic and a poet from the 17th century who applauded and praised William Shakespeare by these words: he is the greatest dramatist and playwright and poet of English language ever lived, and nobody is comparable to William Shakespeare. Okay, so he has written a lot of great plays like As You Like It, Romeo and Juliet, and Antony and Cleopatra, Othello, Macbeth. And these are the famous plays of William Shakespeare. So William Shakespeare was born in the city which was called Stratford-on-Avon. It is actually a village. He was born in this village, then he shifted to London after the late days of his life. Now William Shakespeare belonged to which age? We all know he belonged to the first era of English poetry, which is called Elizabethan era or Elizabethan period or Elizabethan age, during the reign of Queen Elizabeth I, when she was ruling the country of England. So so that's why William Shakespeare is an Elizabethan poet. And there is one specific characteristic of Elizabethan poet, and you all know that they are expert in writing satire or puns. In first year there was Under the Greenwood Tree, in which William Shakespeare was making fun of those persons who live in a city instead of living in a jungle. And here he is also describing some sort of mockery or sarcasm, you can see here as well. So this is just a little bit short introduction about William Shakespeare. This is far more than enough, you know about these things. Then about the play. This poem, The Seven Ages of Man, is a speech, एक तकरीर है, a speech from As You Like It. And all you know, As You Like It, it is a musical play, like Bollywood movies. It is a musical play. There are stories as well as there are poems, there are songs. Under a Greenwood Tree was also a song from As You Like It. And it is also a song or a speech from As You Like It. And you know about the story of As You Like It. The story of two brothers. One was Duke Senior, who was the King of England, and he had a stepbrother whose name was Ferdinand. So
So Ferdinand was jealous of his brother Duke Senior, and Ferdinand became king by cheating his brother, and then sent Duke Senior to the forest of Arden to live a life of exile. And there he was living with his friends, a few friends, while his only daughter Rosalind was captured by Ferdinand in a prison. So in the first year poem, the king was so much gloomy and sad, and Lord Amin was the singer who sang a song that don't go to city, it is full of enemies, so stay here in the jungle. Here in the 7 Ages of Man, it is Act 2 and scene number 7. That's it. Under a Greenwood Tree was Act 2, scene 5. So it is this song, this speech comes in the scene 7 of Act number 2. And who is the speaker? Who is the speaker of this poem? So not Lord Amin. This time Jacques is singing for the Duke Senior. Jacques is the person who is singing this song. In first year, Under a Greenwood Tree was sang by Lord Amin. Okay. So Jacques was a negative thinker. He was a pessimist. And which type of person is a pessimist? Who thinks that the glass is half empty. That is a pessimist, a negative thinker. Who only looks at the dark side of anything or any person. That's why he is a pessimist or a negative thinker, Jacques. And he is telling about the pessimistic view of a human life. That every man has 7 ages और 7 stages, कि हर इंसान की ज़िंदगी में 7 दौर होते हैं, और उन 7 दौरों का वो मजाक उड़ाते हैं जैक्वस, कि पहले दौर से लेकर आखिरी दौर तक इंसान की सिचुएशन ऐसी होती है कि उसका मजाक उड़ाया जाए, तंज किया जा रहा है, सेम जैसे कि एलिजाबेथन पोइट्स की शान है कि वो सटायर बयान करते हैं, इसमें भी तंज है, इंसान पर तंज है, ये पूरे इंसान पर तंज है, उसके तमाम दौर पर तंज है, 6 के 6, कि वो किस तरह से उसकी सिचुएशन जो है वो एक तरह से काबिले तंज होती है, काबिले तफरी होती है, काबिले मज़ा होती है, उसकी जो पोजीशन होती है डिफरेंट स्टेजेस पे। टेक्निकली बात किया जाए तो ये जो पोम है द 7 Ages of Man, ये पोम है एक ब्लैंक वर्स। एंड विच टाइप ऑफ पोम इज अ ब्लैंक वर्स? याद है किसी को? तो द 7 Ages of Man टेक्निकली इट इज अ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं? जिसमें राइमिंग नहीं करती है, एलिट्रेशन नहीं होती, जिसके अंदर एंडिंग रदीफ मतलब उर्दू में जिसमें नहीं होता, एंडिंग वर्ड सेम नहीं आते हैं। अगर आप इसके एंडिंग वर्ड चेक करो तो प्लेयर्स, इंटेंसेस, पार्ट्स, इन्फेंट, आर्म्स, सैचल, स्नेल, लवर, बैलेट, सोल्जर, पार्ट, क्वेरल, रेपुटेशन, जस्टिस, लाइन, कट, इंस्टेंसेस, शिफ्ट्स, पेंटालून, साइड, वाइड, वॉइस, पाइप्स, ऑल, हिस्ट्री, ओब्लिवियन, एवरीथिंग। कोई राइमिंग पैटर्न नहीं है, ये ब्लैंक वर्स है, ठीक है। और कुछ राइम कर रहे होते तो राइमिंग कपलेट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताता, है बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें, बट यू विल बी बोर्ड ऑफ दैट। इतना बताऊंगा जितने पेपर में अगर आस्क कर लेंगे आपसे, क्योंकि बहुत सारे जो है ना पेपर जो बनाते हैं वो मास्टर्स इंग्लिश में आपको बताया था फर्स्ट टाइम में भी होता है, तो बच्चों को तंग करने के लिए इस तरह की बातें पूछ लेते हैं। फिर हमारे बच्चों को रगबत होती है कहानी किस्से से, उनको टीचर आते हैं क्लास में कहानी सुना कर चले जाते हैं। लेकिन और ये बात हमें इंग्लिश वालों को पता है, जो पेपर बनाने वाला होता है वो बिला वजह बच्चों को तंग करने के लिए ऐसे MCQs डाल देते हैं इस तरह के, क्योंकि हमारे यहाँ तो टीचर 7 दौर बताएंगे, ऐसे मुझे मुस्कुरा के बच्चों को हंसा के चले जाएंगे। पेपर में आ जाएगा बिल्कुल सीरियस था कुछ, मतलब किस टाइप की पोट्री थी, बच्चे की तो पैर जमीन निकल जाएगी। टीचर ने तो बस कहानी सुना दी थी कि राजा रानी थी, ऐसा हुआ था। यही होता है ना इंग्लिश में, हम यही पढ़ के जाते हैं, टेक्निकली तो हम कुछ नहीं पढ़ते हैं ना, टीचर बताते हैं ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें। तो लेकिन मैं आपको लास्ट में टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप देखा करें, इंटरनल मतलब चीज़ों के बारे में। MCQs बन भी रहे होते हैं, अगर आपने पास पेपर भी चेक किया था और पेपर तो देने का मौका नहीं मिला, बट आपको पता लगता है कि फर्स्ट टाइम MCQ डिफिकल्ट होते हैं इंग्लिश के पास। चले भाई स्टार्ट करते हैं इंसान के 7 दौर, द 7 Ages of Man। यहाँ पर मैन से मुराद मर्द नहीं है, इंसान है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, मैन से मुराद यहाँ मर्द ही है, उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ मैन से मुराद इंसान नहीं है, क्योंकि औरतों के दौर अलग होते हैं 7 ना, तो वो फिर मैं अलग एंड में बताऊंगा आपको कि वो कौन से दौर होता है उनको जिंदगी में। तो नाउ स्टार्टिंग ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। अच्छा, शुरू के जो उसकी 2 लाइन्स है ना वो बहुत फेमस लाइन्स इंग्लिश में, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरेली प्लेयर्स। ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और सारे मर्द और सारे औरत मेरेली प्लेयर्स, वो सिर्फ इसके खिलाड़ी हैं, अदाकार हैं।
ये पूरी दुनिया एक स्टेज की डिमांडिंग है, और इस स्टेज के अंदर हर मर्द और हर औरत, हर इंसान जैसे एक अदाकारी कर रहा है, अदाकार है, उसके अलावा कुछ नहीं। सुना होगा आपने ये 2 लाइन इससे पहले भी कई बार फिल्मों में। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक इंसान, एक मर्द अपने वक्त में बहुत सारी अदाकारी अंजाम देता है, बहुत सारे हिस्से अदा करता है। एक मर्द जब दुनिया में आता है तो बहुत सारे हिस्से अदा करके वो दुनिया से जाता है। हिज एक्स बीइंग 7 एजेस, उसकी अदाकारी 7 अदवार पर मुश्तमिल होती है, 7 दौर पर मुश्तमिल होती है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहला दौर जो किसी मर्द की ज़िंदगी में आता है वो होता है इन्फेंट। फर्स्ट स्टेज पे डिस्कशन करते हैं इन्फेंट। इन्फेंट मतलब तफल या शीर ख्वार बच्चा, नेसेंट बेबी, ठीक है। तो नेसेंट बेबी जिसको हम कहते हैं दैट इज शीर ख्वार बच्चा, वो बच्चा जब बहुत छोटा हो, दिनों का या हफ्तों या महीनों का हो, उसी को हम कहते हैं इन्फेंट। इन्फेंट बेबी, शीर ख्वार बच्चा। तो सबसे पहले वो बनता है इन्फेंट, मतलब सबसे पहले जो स्टेज आता है इंसान की जिंदगी में, इन्फेंट। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। म्यूलिंग से मुराद होता है कमजोरी से रोना, धीमे अल्फाज से, धीमे लहजे में रोना। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ या रोने की आवाज़ बहुत तेज़ नहीं होती है, बहुत स्लो वॉइस के साथ, बहुत लो साउंड के साथ वो रो रहा होता है, तो उसी को हम कहते हैं म्यूलिंग। पहले इंग्लिश है, हाँ बोलो, 6 बजे। तो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। म्यूलिंग धीमे लहजे में रोता है, धीमे अल्फाज में रोता है, क्राई मतलब चिल्ला कर रोना, ठीक है, धीमे अल्फाज में रोता है। एंड प्यूकिंग, प्यूइंग मतलब उल्टी कर देना। बच्चे जो है ना, अच्छा वॉमिटिंग उल्टी होती है, ज़्यादा हो, अगर थोड़ी सी उल्टी हो तो प्यूकिंग, तो बच्चे थोड़ी सी उल्टी करते हैं, उसको प्यूकिंग कहते हैं। रोता है और वो उल्टी करता है इन द नर्सेज आर्म। नर्स से मुराद यहाँ पे माँ है, नर्स मतलब देखभाल करने वाली, देखभाल करने वाली माँ होती है। तो अपने माँ की गोद में वो रोता है और उल्टी कर देता है, ठीक है। तो बच्चे की कहा जा रहा है कि इंसान की शुरुआत होती है ना, इंसान की शुरुआत जब गम के साथ होती है। बच्चा जब पैदा होता है ना, ठीक है, जब ज़िंदगी जब उसके अंदर आती है तो वो रोता है कि नेचुरल, कि गम जो है ना दैट इज़ नेचुरल। सैडनेस, गम, ग्रीफ, दुख, रंज, अलम, मुसीबत, परेशानी, ये नेचुरल है। आप इस दुख और गम के बीच में खुशियाँ तलाश करते हैं। खुशी मिलती नहीं है, खुश होना पड़ता है, लेकिन गम मिल जाता है खुद ब खुद। गमगीन होते नहीं हम, गम मिलता है और खुशी तलाश करनी पड़ती है। हम लोग यहाँ पर खुदकुशी किस लिए करते हैं लोग, कि उनको खुशी की वो खुशी मिल लेना चाहते हैं वो, क्योंकि खुशी ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है, उसको तलाश किया जाता है। गम वो चीज़ है जो आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। ये बात पता लग जाए तो इंसान जो है ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह स्ट्रेस को मैनेज करे अपनी, है ना, और बहुत तरह हद तक ज़िंदगी बेहतर हो उसकी। तो कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोते हुए पैदा होता है। देखिए नेचुरल जो अल्लाह ताला ने इमोशन दिया है वो दुख दिया है इंसान को, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा पैदा होता है और वो रोता है, उल्टी करता है अपने माँ की बाजुओं में, अपने माँ के गोद में, उसके बाजू में, ठीक है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद रोता हुआ स्कूल, विनिंग मतलब उलट है, म्यूलिंग के, बुलंद आवाज़ से रोना। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वो चीख के रोता है, पूरी गली सुन रहा होता है, ठीक है। सेकंड इज वाइनिंग स्कूल बॉय, रोता हुआ स्कूल जाने वाला लड़का बन जाता है, मतलब उसकी उम्र 2.5 साल की होती है। स्कूल वाले बोलते हैं बच्चा इतना बड़ा हो गया तक स्कूल नहीं डाला, उसको चलना भी आ गया, उसको स्कूल डालो, तो स्कूल भेज दिया जाता है। उसको 2.5-3 साल का होता है, स्कूल डाल दिया जाता है। घर में अम्मी भी खुश हो जाती है, चलो थोड़ा देर तक ठीक है। तो एट द वाइनिंग स्कूल बॉय, तो उसके बाद रोता हुआ स्कूल जाने वाला लड़का बन जाता है वो, विथ ए सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। अच्छा एयर वाइज अगर हम बात करें ना, तो इन्फेंट की एज जिसमें आप समझ लो 1 से 3 कर लो, उसको 1 से 2 कर लो, बल्कि 2.5 सही, ठीक है। और 2.5 से फिर आप इसको आगे जाकर जो है वो आगे एयर चलाते हैं, मुझे बता रहे काम चलेगा। उसके बाद रोता हुआ स्कूल जाना है लड़का विथ ए सैचल, अपने बस्ते के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका एक चमकता हुआ सुबह का चेहरा। क्रीपिंग लाइक स्नेल, रेंग रहा होता है गूंगे की तरह। अनविलिंगली टू स्कूल, बेदिल होता है स्कूल जाने के लिए। मतलब रोता हुआ स्कूल जाने वाला बच्चा जिसके पास एक बस्ता है, सैचल है, और उसका सुबह का खुशगवार चेहरा है, लेकिन वो बड़े आराम से जा रहे हैं, रेंगते रेंगते जा रहा है बेदिल होकर। इसकी माँ उसको खींचते हुए लेकर जा रही है और वो पीछे घर की तरफ भाग रहा है। और वो हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है, पहले जब स्कूल जाते तो जाना नहीं चाहते बच्चे, उसको तो खींच कर लाया जाता है उसको। तो सैचल बस्ता जो उस पर टांगते हैं ना, मतलब जो बाजू पे जो लटकाते हैं जिस बस्ते को, उसको सैचल कहते हैं।
वो जो हैंड मतलब उसके होता है एक साइड पर होता है, वन साइडेड बैग। तो उसका बस्ता होता है और सुबह का उसका चेहरा होता है चमकता हुआ बच्चे का, और वो रेंग रहा होता है, गूंगे की तरह जा रहा होता है बेदिली से स्कूल की जाने। ठीक है, दैट इज द एज, दैट इज स्टिल द एज इज स्टिल 14 तक ये एज कहते हैं कि ये स्कूल बॉय वाली एज रहती है। ठीक है, मैन में उसके बाद थर्ड, उसके बाद जो एज स्टार्ट हो जाए देन द लवर। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज शिफ्ट करती है एंड देन लवर, उसके बाद आशिक। ठीक है, आशिक कह सकते हैं या मोहब्बत करने वाला कह सकते हैं। उसके बाद लवर, साइंग लाइक फर्नेस, जो आहें भरता है। साइंग मतलब आहें भरना, फर्नेस मतलब भट्टी की तरह, तंदूर की तरह। फर्नेस मतलब होता है तंदूर भरना, तंदूर कहते हैं फर्नेस को या भट्टी को कहते हैं, और साइंग मतलब आहें भरना, वो तंदूर की तरह आहें भरता है। विद अ वोफुल बैलड, वोफुल किसे कहते हैं गमगीन, दुखी, और बैलड किसे कहते हैं, बैलड के मीन्स होते हैं नगमा। ये गमगीन नगमा गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो बनाया गया होता है मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस से मराद यहाँ पर माशूका या महबूबा के मायनों में ले सकते हैं। मिस्ट्रेस, आईब्रो मतलब आंखों के भवे। तो मतलब यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि जब जब आफ्टर 14 एज जब क्रॉस होता है, आफ्टर दैट ईयर, तो स्कूल वन के बाद एक जस्ट कॉलेज लाइफ जो चीज़ आती है, इसको विलियम शेक्सपियर कहते हैं लवर एज। लवर एज इसको कहते हैं, और कहते हैं कि भाई अच्छा यहाँ लवर एज, यहाँ पर इसको जरा समझो, इसको मेटाफोर के तौर पर कहा जा रहा है कि जब इंसान की जब ये एज आती है ना, तो इंसान के इमोशंस और उसके जज्बात वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा वो बेकाबू होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। उस एज को लवर एज कहा जा रहा है। आप इसको सिर्फ एक ही सेंस में हम नहीं दे सकते हैं कि ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर, सिर्फ इस केस में नहीं ले सकते हैं। हम इस केस में लेते हैं कि उस वक्त जो उसके इमोशंस, उसके जज्बात बहुत ज़्यादा बेकाबू होते हैं, उसको लवर एज कहा जा रहा है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहता है कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, ये सेल फोन, ये कंप्यूटर, कुछ भी चाहिए, तो उसको लेना ही लेना, कुछ भी करिए। ओके, हाथ काट देगा कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, उसको लेना है। सिंपल ना होता है, ये लवर एज कहलाती है, कि उसको किसी भी एक चीज़ से मोहब्बत हो जाती है। तो उसको आप मेटाफोर के सेंस में देखो, तारा ले लो उसके यहाँ से। तो उसके बाद वो बनता है एक लवर, वो बनता है एक आशिक, और वो आहें भरता है एक तंदूर की तरह, और एक वो फुल बैलेट गाता है, गम की नगमा गाता है, जो उसने अपनी माशूका के भावों के लिए, आईब्रो के लिए बनाई होती हैं। मतलब शायद कि उसकी माशूका जो है, उसके भावें, उसके आंखों के ऊपर जो भावें हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो और शायद उसकी जो मतलब कि वो उसकी सेपरेशन हो चुकी है उसकी मिस्ट्रेस से, जिसकी वजह से उसको याद करके नगमे गाता है और आहें भरता है, एक तंदूर से जैसे आवाज़ निकलती है, देन कोयले के दहकने की आवाज़ जो आती है। मतलब वो एक इस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि अच्छा ये भी यहाँ पर नॉर्मली लव, तो और जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इश्क करता है, ये भी है कि इसमें एक और बात आपको पता लग रही है कि लवर एज में जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इश्क करता है, बहुत ज़्यादा बार उसको वो चीज़ नहीं मिलती है। इंसान की जैसे वो जिद होती है और बहुत बार पूरी नहीं होती है ना। इसलिए कहते हैं फर्स्ट लव ऑलवेज कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फेल्ड लव। तो दैट इज़ हाउ के वो आहें भरता है। ठीक है, एक बैलड गाता है अपनी जो महबूबा के माशूका के उसने भावों के लिए लिखे होते हैं। देन अ सोल्जर, उसके बाद बन जाता है वो एक सोल्जर। अच्छा ये 14 एज के बाद 18 एज तक के रहता है। ठीक है, आफ्टर दैट सोल्जर एज आ जाता है। सोल्जर कैसे कहते हैं, सोल्जर मतलब सिपाही, 18 से आ जाता है। सिपाही से बड़ा अब ये ना समझो कि हर बंदा आर्मी में चला जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाते, इस तरह से आप मेटाफोर इस तारा फिर चलें कि उसके बाद वो बन जाता है एक सोल्जर। मतलब पांचवा चौथा स्टेज आता है और इंसान बन जाता है सोल्जर, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ। वो भरा होता है अजीबोगरीब किस्म के वादों से, बहुत मतलब वादा, बहुत सारे वादे कर लेता है वो अपने मुल्क से, अपने कौम से, अपनी माँ से, अपने लोगों से वादे कर लेता है वो। एंड बेयर्डेड लाइक द पार्ड, और उसकी दाढ़ी हो जाती है, बेयर्डेड मतलब उसकी दाढ़ी निकल आती है, लाइक द पार्ड। पार्ड मतलब यहाँ पर लेपर्ड, लेपर्ड को शॉर्टकट में पार्ट लिखा गया। लेपर्ड मतलब शेर, बगर शेर। ठीक है, वैसे लेपर्ड कहते हैं तेंदुए को, यहाँ पर लेपर्ड का मुराद दी जा रही है बबर शेर, सिर्फ उसकी वजह से कि उसकी बबर शेर की तरह से उसकी जो है वो दाढ़ी हो जाती है। जेलस इन ऑनर, इज्जत में जेलस होता है, इज्जत में जेलस होता है, इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। सडन एंड कोई किंकर, तेज सरार होता है लड़ाई फड्डा करने में। ये जब आती है इंसान की तो लड़ाई के तेज हो जाता है, 18 के बाद से फिर जो एज चलती है उसमें। और इज्जत में कोई हर्फ नहीं आने चाहिए, वो लड़ाई भी कर सकता है, फड्डे भी कर सकता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वह पानी के बुलबुले जैसी शोहरत को जस्तजू कर रहा होता है, उसको ढूंढ रहा होता है। मतलब वो बबल रेपुटेशन मतलब वो शोहरत जो पानी के बुलबुले की तरह होती है, फट जाती है फौरन से, वो उसकी तलाश करता है, जस्तजू करता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि तोप के मुंह के सामने भी, तोप है ना, तो तोप के मुंह के सामने भी वो खड़ा होकर मतलब खतरात से लड़कर भी वो शोहरत चाहता है, इज्जत चाहता है, नाम चाहता है। कैनन में समझ देती है तोप, एक डबल लाइन वाला कैनन और एक सिंगल लाइन से कैनन होता है, दैट इज एक्चुअली द ब्रांड ऑफ अ कैमरा। वो DSLR होता है कैनन, ठीक है, तो वो सिंगल लाइन से होता है वो कैनन, और डबल लाइन से कैनन तोप होता है। ठीक है, यहाँ तक कि कैनन्स माउथ,
कि तोप के मुंह के सामने भी वो क्या करता है भाई कि वो जो है वो शोहरत चाहता है, इज्जत चाहता है, रेपुटेशन चाहता है। एंड देन द जस्टिस चले जाता है ये 18 से लेकर समझ जाओ कि ये जिसकी 24 तक रहती है। उसके बाद आफ्टर दैट जस्टिस एज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा जस्टिस की एज मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। यहाँ पर 18 से लंबे अरसे तक ये 30 तक रहती है। आफ्टर 30 ये एज जो है वो फिर चेंज होती है, जस्टिस एज आ जाता है। जस्टिस मतलब वैसे तो जज होता है, लेकिन हर बंदा जज भी नहीं बनता, मुंसिफ बन जाता है, फैसले करने वाला बन जाता है। मतलब कि लेट्स से कि वो ही गॉट मैरिड एंड ही हैड सम ऑफस्प्रिंग्स, और वो उनके लिए फैसले करता है, जजमेंट्स देता है अपने। ठीक है, तो वो जस्टिस बन जाता है, जज बन जाता है। इन फेयर राउंड बेली, फेयर बिल्कुल गोल उसकी तोंद निकल आती है। बेली मतलब तोंद कहते हैं, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका मोटा सा हो जाता है वो 30 ईयर्स के एज के बाद, उसकी जो है तोंद निकल आती है। बट गुड कैपन लाइन, कैपन कैसे कहते हैं, चिकन को कहते हैं, मुर्गी खा खा के उसकी तोंद निकल आती है। क्या मतलब ये लाइन मतलब भरना, मुर्गी भर लेता है पेट में वो अपने खा खा के और उसकी तोंद निकल आती है। फास्ट फूड से होते हैं ना, चिकन ज़्यादा खाओगे तो भाई डाइट मोटे हो जाओगे। तो मुर्गी खा खा के, मुर्गी भर भर के पेट में उसकी फेयर राउंड बेली, बिल्कुल गोल उसके जो है वो तोंद निकल आती है। ठीक है, विद आईज सेवियर, और उसकी आंखें शदीद हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। आईज सेवियर सख्त आंखें हो जाती हैं, गुस्से वाली आंखें हो जाती हैं। एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी फॉर्मल कट की दोबारा हो जाती है, फ्रेंच टाइप की मतलब दाढ़ी। पहले दाढ़ी बबर शेर की तरह के सोल्जर एज में, जैसे एज में आता है दाढ़ी फिर छोटी हो जाती है उसकी 30 साल के बाद जब एज आती है। ठीक है, देन क्या होता है फिर कि फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, भरा होता है वो अक्लमंदी की कहावतों से। सॉस मतलब कहावतें, अक्लमंदी की कहावतों से वो भरा होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और जदीद मिसालों से उसका जहन भरा होता है। मतलब वो बहुत सारी बातें बताते हैं, जस्टिस है ना, फैसला करता है वो, उसके जहन में वो लोग उससे फैसला करवाते हैं। घर का एक बड़ा शख्स होता है, जदीद मिसालें, तो घर के लोग उससे फैसले करवाते हैं, उससे जजमेंट्स करवाते हैं, वो फैसले करता है, मतलब हक पूरा करता है लोगों के, जिम्मेदारियाँ उठाता है, रिस्पॉन्सिबल बंदा बन चुका होता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। अच्छा, लेकिन अब इसमें भी वो मजाक उड़ा कर एक इंसान की बात, हर एक एज में मजाक उड़ा रहा है कि इन्फेंट है तो उल्टी कर रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर वो रो रहा है, उसके बाद जब वो छोटा जब स्कूल जा रहा है तो फिर वो रो रहा है वो, और गूंगे की तरह जा रहा है, और उसकी माँ उसको खींचते हुए लेकर जा रही है। लवर बन रहा है तो फिर वो फिर से वो रो रहा है, उसमें भी रो ही रहा है, तो रो रहा है वो, तो उसकी वो फुल बैलड गा रहे हैं, गमगीन नगमा गा रहा है, मजाक ही उड़ाया जा रहा है। अच्छा, सोल्जर बन जा रहा है तो वो मतलब उसमें बताया जा रहा है कि वो अपनी इज्जत को मांग रहा है, चाहे वो खतरे से लड़के भी इज्जत के लिए वो पीछे है, और तेज तरार हो जा रहा है फड्डा लड़ाई करने में। जस्टिस ने बताया जाए उसकी तोंद निकल आ रही है, ठीक है, चिकन खा खा के, फिर भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से एक तरह से ये एक नौकरी है, जो एलिजाबेथन पोएट्स के एक तर्ज है वो आपको उसमें दिख रहा है, मजाक उड़ाने वाला तर्ज, सटायर, सार्केज्म। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपने इस किरदार को सरअंजाम देता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट, यहाँ तक कि छठा दौर आ जाता है इंसान की जिंदगी में। तो ये इसके बाद 6 स्टेज आता है जिसको लोग बोलते हैं ओल्ड एज। अच्छा, ये 30 से लेकर ये समझो कि 45 तक ये रहता है, और उसके बाद आ जाता है ओल्ड एज। 45 से आगे जाकर वो 60 तक चलता है। ओल्ड एज इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, और वो पहन लेता है लीन मतलब पतले, और स्लिपरी पतलून वो पहन लेता है, मतलब स्लीपर्ड पेंटालून। पतलून जो होता है ना, वो पुराने ज़माने में होता था, बूढ़े लोग पहनते थे कि उस तरह से 2 बेल्ट आ रहे होते थे यहाँ से, पतलून जिसको बोलते हैं। तो वो पुराने ज़माने में पतले से स्लीपर्ड पेंटालून, वो मतलब उसकी जो ट्राउज़र होती थी पतली सी होती थी, और इस तरह से वो यहाँ से बेल्ट आया होता था। पुराने वक्तों में ये फैशन था, अपने यहाँ दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं, लोग कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना फैशन है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और उसकी जो ऐनक है, उसका जो चश्मा है वो उसके नाक पर आ जाता है, मतलब नाक पे उस फ्रंट पे आया था ना, मतलब देखा नहीं है कभी। असल में उसकी करीब की नज़र ख़राब हो जाती है, तो करीब की नज़र के लिए फिर हम चश्मे नीचे रखते हैं, पढ़ना होता है बिल्कुल। दूर की नज़र ख़राब होती है, वो चश्मा ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, ऐनक उसके नाक पर आ जाती है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसके साइड पर एक बटवा होता है। पाउच मतलब यहाँ पर एक बटवा कह लो, इस तरह से वो बेल्ट के साथ एक बटवा लगा के रखते हैं, ठीक है। पाउच ऑन साइड, और उसके साइड पे एक पाउच होता है, एक बटवा होता है। हिज यूथफुल होस, और उस बटवे में क्या रखता है, हिज यूथफुल होस, अपने जवानी के कपड़े रखता है वो, वेल सेव्ड, बचा कर, मतलब उनको बचा कर रखता है, अपने जो जवानी के दौर के जो कपड़े होते हैं, या उसके होस से मुराद यहाँ पर होजरी, होजरी से मुराद लाइक गारमेंट्स, ठीक है, कपड़े। तो वो कपड़े या मोजे, जुराबे वगैरह इस तरह की चीज़ें बचपन की, ये अपने उसके पुराने दिनों के वो बचा कर रखते हैं। यहाँ पर उससे मुराद ये नहीं कि हर बंदे ये रखे,
इसका मतलब वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है। नॉस्टैल्जिक से मुराद ये कि उसको पुरानी बातें याद आती हैं, वो अभी की बात तो भूल जाता है बट उसको पुरानी बातें सारी याद रहती हैं, है ना। कभी पूछो तो वो बताते बंगाल में ऐसा होता था, बंगाल में ऐसा, पुराने लोगों से पूछो, बूढ़े लोगों से, बंगाल में इंडिया में ऐसा हुआ था, बंगाल में हम ऐसा करते थे। नया कुछ याद नहीं, कभी क्या चल रहा है, पुराने सारे याद रहेंगे। तो पुरानी चीज़ें उनको पूरी याद रहती हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने पुराने कपड़ों को बचा कर रखता है। A world too wide for a shrunk shank, एक दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है फॉर a shrunk shank। shrunk मतलब पतले पतले, shank मतलब होते हैं टांगे। उसकी पतली पतली टांगों के लिए ये दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। दुनिया तो उतनी ही रहती है लेकिन वो कमज़ोर सा हो जाता है, टांगे पतली हो जाती हैं तो उसकी स्पीड बड़ी कम हो जाती है, गली पार करने में उसको टाइम लग जाता है। एक दुनिया बहुत ज़्यादा कह लो कि बड़ी हो जाती है उसके पतली पतली टांगों के लिए। एंड स्पीक मैनली वॉइस, और उसकी जो भारी मर्दाना आवाज़ होती है, मैनली वॉइस मतलब मर्दाना आवाज़ जो उसकी होती है बिग बड़ी, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेवल, वो आवाज़ दोबारा बच्चों जैसी बारीक हो जाती है। मतलब बूढ़े लोगों की आवाज़ में वो दम नहीं होता, आवाज़ दोबारा से बारीक होनी शुरू हो जाती है। ट्रेवल कहते हैं बारीकी, बेस होता है, बेस मतलब भारीपन और ट्रेवल मतलब बारीकी। ये वो स्पीकर में लगा होता है बेस और ट्रेवल, तो बेस बढ़ा देते हैं तो फिर वो भारी आवाज़ तेजी से निकलती है, धमक ड्रम वगैरह की आवाज़। ट्रेवल बढ़ा देते हैं तो बारीक आवाज़, झंकार वगैरह वो तेज़ी से निकलना शुरू हो जाती है। तो चाइल्डिश ट्रेवल, बच्चों जैसी बारीक आवाज़ हो जाती है दोबारा से उसकी। पाइप्स एंड विसल्स इन ए साउंड, उसकी आवाज़ में सीटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। सीटियाँ बजने के बाद जब वो बोल रहा होता है तो सांस ले रहा होता है, बीच में बोलता है, कमज़ोर हो जाता है ना भाई, तो बोलते हुए उसकी आवाज़ में ऐसा लगता है सीटियाँ बज रही हैं, मतलब वो कमज़ोरी के साथ बोलता है, सांस ज़्यादा निकालता है बोलते हुए। सिटी मतलब हवा बाहर आने की आवाज़, मतलब दूसरा साफ कह सकते हैं आवाज़ को, सिटी नहीं कह सकते उसको। पाइप्स एंड विसल से मुराद यही यहाँ पर है कि हम की आवाज़ से ऐसा लगता है कि जैसे वो हाँप रहा है, बंदा हाँपते हुए बात कर रहा हो। लास्ट सीन ऑफ ऑल, आखिरी सीन आता है आखिरकार। ओल्ड एज के बाद 7वां दौर इंसान की जिंदगी का आखिरी दौर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड चाइल्डिशनेस, जो 60 साल से लेकर डेथ तक की मौत तक चलता है इंसान के, ठीक है। इसको सेकंड चाइल्डिशनेस कहते हैं, दूसरा बचपना इंसान में। लास्ट सीन ऑफ ऑल, आखिरी सीन आता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो ख़त्म कर देता है इस अजीब सी इवेंटफुल मामूली सी तारीख को। इस इंसान की तारीख को यह आखिरी दौर ख़त्म कर देता है, इंसान की तारीख मिट जाती है। इन सेकेंड चाइल्डिशनेस, जिसको हम कहते हैं दूसरा बचपना, मतलब इंसान दोबारा से बच्चा बन जाता है हर तरह से। किस तरह से बच्चा बन जाता है आगे बता रहे हैं। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और वो सिर्फ भुला देता है, मेयर मतलब सिर्फ, ऑब्लिवियन भुला देता है। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है ना उसकी, ये छोटे बच्चे हैं उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे। बिल्कुल वैसे ही कि जब इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है तो वो अपना नाम तक भूल जाता है, हर कुछ भुला देता है वो, ऑब्लिवियन भुला दिया जाना, याददाश्त खो जाती है उसकी। सेंस टीथ, सेंस मतलब खो देना, मेयर मतलब सिर्फ भुला देता है चीज़ों को। और सेंस मतलब विदाउट, फ्रेंच वर्ड है सेंस, उसके मतलब होता है विदाउट, बिना। सेंस टीथ, वो अपने दांत खो देता है, दांत चले जाते हैं उसके। सेंस मतलब खो देना, खो देता है वो अपने दांतों को। सेंस आइज, आंखें खो देता है, मतलब आंखों से बिनाई चली जाती है एक बहुत ज़्यादा बूढ़े होने के बाद। सेंस टेस्ट, जायका खो देता है, मतलब उसके ज़बान में जायका नहीं आ रहा होता है, खाने पीने का कोई जायका उसको महसूस नहीं हो रहा होता है। सेंस एवरीथिंग, यहाँ तक कि वो हर एक चीज़ खो देता है और आखिरकार मौत की आगोश में चला जाता है और इंसान की ज़िंदगी खत्म हो जाती है साथ में। दैट इज़ अ वेरी फेमस पोम रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर की सदर को पूरी दुनिया पढ़ती है। दैट इज द 7 एजेस ऑफ मैन, इंसान के 7 दौर। इसमें बताते हैं इंसान इन्फेंट से लेकर सेकंड चाइल्डिशनेस तक कितने दौर से गुजरता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान की ज़िंदगी में ये दौर आता है। उसकी साइकोलॉजिकल तब्दीलियाँ इस तरह से होती हैं कि वो इन्फेंट, वाइनिंग, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, ओल्ड एज, और यहाँ तक कि सेकंड चाइल्डिशनेस दूसरे बचपने तक पहुँच जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय जैक्वस